नमस्कार, मैं हूं नगमा और ये है सच की पड़ताल। अमेरिका में हमला डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ। गोली उनके कान को छूकर निकली, लेकिन चोट जैसे बाइडेन को लगी है। ये लगभग मान लिया गया है कि इस हमले से उपजी सहानुभूति या फिर गुस्से की लहर ट्रंप के पक्ष में ही जाएगी और पहले से कमजोर पड़ रहे बाइडेन को कुछ और कमजोर करेगी। लेकिन 81 साल के बाइडेन हार मानने को तैयार नहीं। उनकी अपनी दलीलें हैं। उनका ये कहना है कि उनकी मानसिक क्षमताएं बिल्कुल दुरुस्त हैं। 3.5 साल में उन्होंने इतने काम किए जितने दूसरे राष्ट्रपति नहीं कर पाते। उनका मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए, ट्रंप उनसे बस 3 साल छोटे हैं। यानी कि अगर उम्र उनकी आड़े आ रही है तो ट्रंप उनसे सिर्फ 3 साल छोटे हैं, ये वो याद दिला रहे हैं। जिस्मानी तौर पर भी वो फिट हैं। उन्होंने 22 बड़े आयोजन कराए, लाखों लोगों से मिले हैं, सबको भरोसा दिलाया है कि वो ठीक हैं। तो ये सारी बात उन्होंने NBC के एंकर लेस्टर हॉल्ट के साथ इंटरव्यू में कही है। इस इंटरव्यू में कई बार बाइडेन खींचे हुए दिखते हैं, कुछ परेशान, उलझते हुए, ये समझने को तैयार नहीं होते कि ट्रंप के साथ पहली बहस में उनका प्रदर्शन खराब रहा। वो ट्रंप पर हमले भी करते हैं। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ट्रंप ने लगातार रेटोरिक का इस्तेमाल किया है, यानी कि शब्दाडंबर का इस्तेमाल किया है। बाइडेन रेटोरिक से बचते रहे। ट्रंप ने अपने हार जाने पर खून खराबे की बात कही। क्या इसका विरोध इसलिए ना हो कि इससे लोग उत्तेजित होंगे? सीक्रेट सर्विस की सुरक्षा पर उन्हें पूरा भरोसा है, यह भी उन्होंने कहा है। और ये सब बातें उस इंटरव्यू में कही गई हैं जो ट्रंप पर हुए हमले के बाद बाइडेन ने दिया है। जाहिर है कि बाइडेन अब तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मुकाबले में अभी एक बड़ी बहस बाकी है, वोट बाकी हैं। देखना यह है कि यह तस्वीर बदलती है या बाइडेन की उम्मीदवारी बदलती है या फिर अमेरिका का अपना राष्ट्रपति बदलता है। पहले सुनते हैं जो बाइडेन ने क्या कहा, फिर उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे अपने साथ जुड़े मेहमानों के साथ। Should he and Michelle Obama be doing more to express their confidence in you? No, they're helping me. They've helped me from the beginning. This is my job to get this done. Who do you listen to on deeply personal issues like the decisions whether to stay in the race or not? Me. Look, I've been doing this a long time. The idea that I'm the old guy, I am. I'm old. But I'm only 3 years older than Trump, number one. And number two, my mental acuity has been pretty damn good. I've gotten more done than any president has in a long, long time, in 3.5 years. So I'm willing to be judged on that. I understand why people say, God, he's 81 years old. Whoa, what's he going to be when he's 83 years old or 84 years old? It's a legitimate question to ask. Is there a sense of wanting to get back on the horse? I'm on the horse. Where have you been? I've done 22 major events, met thousands of people, overwhelming crowds, a lot happening. I'm on the horse. What I'm doing is going out and demonstrating to the American people that I have command of all my faculties, that I don't need notes, I don't need teleprompter. I can go out and answer any questions at all. And I stood there when NATO was in town. I stood there for an hour and answered questions. If you were to continue to run and be officially nominated, what happens if you have another episode like we saw during the debate? What happens if another? Yeah, what happens if you have another performance on that on that level? I don't plan on having another performance on that level. You spoke to Mr. Trump afterward. Can you give me a sense of that conversation? Very cordial. I told him how concerned I was and wanted to make sure I knew how he was actually doing. He sounded good. He said he was fine. And he thanked me for calling him. I told him he was literally in the prayers of Jill and me. And I hope his whole family was weathering this. You were in Delaware when this happened. What was your first reaction? My first reaction was, my God, look, there's so much violence now, the way we talk about it. I mean, the whole notion that there is this
There's no place at all for violence in politics in America. None. Zero. Taken a step back and done a little soul searching on things that you may have said that could incite people who are not balanced. Well, I don't think, look, how do you talk about the threat to democracy, which is real, when a president says things like he says? Do you just not say anything because it may incite somebody? Look, I have not engaged in that rhetoric. Now, my opponent is engaged in that rhetoric. He talks about there'll be a bloodbath if he loses, talking about how he's going to forgive all those, actually, I guess, suspend the sentences of all those who were arrested and sentenced to go to jail because of what happened in the Capitol. I'm not out there making fun of, like, remember the picture of Donald Trump when Nancy Pelosi's husband was hit with a hammer, joking about it? Do you have confidence in the Secret Service? Do you feel safe? I feel safe with the Secret Service, but look, and you saw, what we did see was the Secret Service who responded risked their lives in responding. They're ready to give their lives to the president. The question is, should they have anticipated what happened? Should they have done what they needed to do to prevent this from happening? That's a question that's an open question. तो ये इंटरव्यू अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद का पहला इंटरव्यू है। इसमें वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस को जो करना चाहिए था वो सीक्रेट सर्विस ने किया, तो वो सीक्रेट सर्विस को किसी तरह से जो उसके पर सवाल उठ रहे हैं ऐसा कोई सवाल नहीं उठाते। उन्होंने अपनी उम्र को लेकर भी जवाब दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैप्टन आलोक बंसल हैं जो निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के, और वीरेंद्र गुप्ता जी हैं पूर्व भारतीय राजदूत। आप दोनों ने ये इंटरव्यू सुना, देखा है राष्ट्रपति बाइडेन का, और जब ये हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप पर उसके बाद से लगातार ये बात हो रही है आलोक बंसल जी कि सिंपैथी वेव मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को, और पहले से ही लग रहा था कि कमज़ोर बाइडेन जिनकी कैंडिडेसी को लेके भी सवाल है वो और कमज़ोर हो गए हैं। ये जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, क्या उससे कोई भरपाई वो कर पा रहे हैं अपनी इमेज को सुधारने की, जो पहली डिबेट के बाद उनको एक डेंट लगा था उनकी इमेज को? जा रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पहली डिबेट के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, और अब ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप पे जो हमला हुआ है, इससे जो सिंपैथी वेव है प्रेसिडेंट ट्रंप को मिल रही है वो और बढ़ रही है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई चीजें कही जिसमें अपना पक्ष सुदृढ़ करने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हूं, सिर्फ 3 साल बड़ा हूं ट्रंप से, और मेरी मेंटल फैकल्टीज बिल्कुल ठीक हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने अच्छा काम किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जब ये हमला हुआ तो मैंने कहा ओ माय गॉड। बेसिकली जो चीज उन्होंने नहीं कही है, जो आगे कहने वाले हैं, वो ये है कि ये जो हमला हुआ ये किस कारण हुआ, क्योंकि आज अमेरिका का जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो बहुत बुरी तरह पोलराइज हो चुकी है, और पोलराइजेशन का ऑफकोर्स काफी हद तक श्रेय जो है डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में जो डेमोक्रेट्स बोलने वाले हैं, जो उन्होंने पहले भी बोला, वो ये है कि जो गन्स की अवेलेबिलिटी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में आप हथियार खरीदते हैं, जैसे आप किसी खिलौने को खरीद रहे हो और आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, तो जिस तरीके की जो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए शेष विश्व में अधिकांश राष्ट्रों में है, वो अमेरिका के अंदर नहीं है। और ये जो गन लॉबी है जिसको अधिकांशतः रिपब्लिकन्स का सपोर्ट मिलता है, उसका भी काफी हद तक श्रेय है जहां तक ये हमला है। जो विषय था कि क्या उनको एंटिसिपेट करना था कि ये हमला होगा सीक्रेट सर्विस को, तो उसने कहा ये भी ओपन क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे जांच जारी है। उस पर तो जांच जारी है भी, लेकिन जैसा बाइडेन का जो इंटरव्यू है और उसमें वो बातें कर रहे हैं, उनकी पहली डिबेट के बाद में उनको बड़ा नुकसान सा हुआ था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पे ये हमला होता है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक सिंपैथी वेव होती है, और दूसरे के डेमोक्रेट्स जैसे जॉर्ज क्लूनी, दूसरे डेमोक्रेट सेनेटर्स ये सवाल उठा रहे हैं इनकी कैंडिडेसी पे। पर अब जब ये हमला हुआ और उसके बाद ये इंटरव्यू है एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, तो उसके बाद में क्या राष्ट्रपति बाइडेन अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते नजर आए हैं? क्या वो आक्रामकता से ये बात सामने रख रहे हैं कि जो उम्र को लेकर उनको क्रिटिसिज्म है, तो उन्होंने साफ कहा कि बाइडेन जो हैं वो ट्रंप से सिर्फ 3 साल बड़े हैं, वो मेंटली फिट हैं, उन्होंने इतनी
सभाएं की हैं, वो लोगों से मिले हैं, 3.5 साल में बहुत सारे काम किए हैं। तो जो रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स वो तो हैं, पर जो दूसरे लोग और हैं जैसे स्विंग वोटर्स हैं, उन लोगों के लिए कितनी कन्विंसिंग आपको बातें ये लग रही हैं, या क्या वो अपने पक्ष में लोगों को कर पाने में कामयाब होंगे इस इंटरव्यू से? देखिए, बाइडन ने अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश करी है, बट वो कितना कन्विंसिंग है ये तो अमेरिकन वोटर ही बता सकता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, तो काफी साफ जाहिर है, और डेमोक्रेट्स देमसेल्व्स, बहुत सारे टॉप डेमोक्रेटिक लीडर्स ने बोला है कि बाइडन को अभी खुद वॉलंटरीली विड्रॉ करना चाहिए। ये तो खैर उनका अपना डिसीजन है और डेमोक्रेटिक पार्टी का डिसीजन होगा। आई थिंक सबसे बड़ी जो इससे बात निकल के आती है, जब बाइडन ने बोला है कंट्री को यूनाइट करने के लिए, और जो एक पॉलिटिकल डिबेट है, डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट होते हैं, बहुत शार्प डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं जी। और एक जो डिबेट है वो एक इलेक्शन के वक्त में और शार्पन हो जाती है। हमने देखा इंडिया में भी हुआ। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जो डिबेट है जी। उसकी एक सर्टेन मिनिमम एलिगेंस और डिसेंसी वो मेंटेन रहनी चाहिए, और वो डिजेनरेट ना हो वायलेंस में। तो इंडिया में नहीं हुआ ये चीज। तो मेरा ख्याल है ये कहना कि इंडिया की एक डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ थी हमारी, और अमेरिका में हो गया, तो वॉज इट अ वन ऑफ इंसिडेंट या एक सिस्टेमिक मैलेज है? तो ये अमेरिकन्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। बहुत दिनों से जो है वो डिबेट जो है वो एक, मेरा ख्याल है, एलिगेंस का जो थ्रेशोल्ड है, डेकोरम का थ्रेशोल्ड है, उसके नीचे गिर गई है। तो इसमें दोनों कैंडिडेट्स का, ट्रंप का और बाइडेन का, दोनों का ही जो है उसमें हाथ है। और अब ये जो है, बहुत पॉलिसीज संभाल के जिसके कदम करना पड़ेगा जिससे अमेरिका की रेपुटेशन दुनिया में खराब ना हो। और जो पॉलिसीज हैं जो इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिनके ऊपर चर्चा हो रही थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण है ये गन कल्चर अमेरिका में जो है, रिपब्लिकन्स का समर्थन उसे मिलता रहा है। जो ये हमला हुआ है अभी डोनाल्ड ट्रंप पे, उसके बाद में इसके ऊपर बहस और इसके ऊपर पोलराइजेशन आपको लग रहा है कि और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? आलोक बंसल, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जिसको बार बार ट्रंप उठाते रहे, बल्कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त भी वो बात कर रहे थे लीगल इमिग्रेंट्स की, वो मुद्दा, अमेरिकन सोसाइटी और भी ज्यादा पोलराइज्ड इस वक्त नजर आ रही है इन इश्यूज पे। और आपको लगता है कि रिपब्लिकन्स इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की स्थिति में हैं और डेमोक्रेट्स को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? आपका क्या इसमें अंदाजा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये दोनों मुद्दे इस बार इस चुनाव में काफी बड़े मुद्दे होंगे। और जैसा आपने कहा कि ये चुनाव मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पोलराइज्ड सोसाइटी के बीच में होगा, और पिछला चुनाव भी काफी पोलराइजेशन हुआ सोसाइटी, जो अमेरिकी सोसाइटी है उसके अंदर, और इसका काफी हद तक श्रेय डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पर क्या इससे पहले कभी पोलराइजेशन नहीं हुआ, ये कहना गलत होगा। पिछले कुछ दशकों में सबसे ज्यादा पोलराइज्ड इलेक्शंस हो सकते हैं, पर अगर आप अमेरिका का इतिहास देखें तो अब्राहम लिंकन और उससे पहले जब सिविल वॉर हुए, उससे पहले जो इलेक्शंस हुए वो बहुत ज्यादा पोलराइज थे, और इस तरीके की घटनाएं पहले भी डीप पोलराइजेशन हो चुका है और कई तरीके की हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अब चूंकि डेमोक्रेट्स को लग रहा है कि रिपब्लिकन्स को इसकी सहानुभूति का जो सिंपैथी वोट है वो मिलने की संभावना है, वो ये गन का इशू जरूर उठाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स काफी समय से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फायर आर्म्स की जो अवेलेबिलिटी है इस पे कुछ रोक लगनी चाहिए। और जहां तक डेमोक्रेट स्टेट्स जो है, जो जनरली डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, जो डीप ब्लू स्टेट्स हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि कुछ हद तक जो आर्म्स को, फायर आर्म्स के प्रोक्योरमेंट और ले जाने में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। लेकिन जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, जो रिपब्लिकन सपोर्टर्स, स्पेशली राइफल एसोसिएशन और ये जो आर्म्स लॉबी है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है रिपब्लिकन्स की, और वो लोग जो है बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना चाहते इस बात को। लेकिन इस हमले के बाद मेरे ख्याल से कुछ हद तक दबाव पड़ेगा, और अमेरिकी चुनाव जिस तरीके से होते हैं उसमें पूरा गेम अधिकतर स्विंग स्टेट्स का है, क्योंकि अधिकांश स्टेट्स इस तरीके की डीपली पोलराइज्ड इलेक्शंस में आपको आधे से ज्यादा स्टेट्स तो आपको पहले ही पता है कौन किसको वोट देने वाला है, कि आपको मालूम है चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले, कैलिफोर्निया का वोट डेमोक्रेट्स को जाना ही जाना है। उसी तरीके के मिड वेस्टर्न स्टेट्स जो है, जो रेड स्टेट्स हैं, वो
ट्रंप के पास जाएंगे। तो आपको स्विंग स्टेट्स में करना, और उसमें फिर दूसरा जो मुद्दा आता है वो इमिग्रेशन का आता है, क्योंकि इमिग्रेशन की जो पॉलिसी है उससे जो व्हाइट जो कोर सपोर्टर है रिपब्लिकन्स का, वो काफी प्रभावित होता है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कि वो और अब जी, और रिपब्लिकन्स इसको और जोर शोर से उठाएंगे और उठाते रहे हैं। लीगल इमिग्रेंट्स का जो मुद्दा है, एम्बेसडर गुप्ता, आपको ये लग रहा है कि अब एक कमजोर, इस वक्त ये माना जा रहा है, लगभग ये तय है कि डेमोक्रेट्स की स्थिति कमजोर है, इसलिए भी क्योंकि बाइडेन उनके कैंडिडेट है, और ये कैंडिडेट बदलने की जो बात हो रही है जिसमें बड़े बड़े डेमोक्रेट्स और उनके फंड रेजर्स जो उनको उनमें समर्थन करते हैं, पूरा हॉलीवुड का जो एक इसमें गुट है, जॉर्ज क्लूनी, इन तमाम लोगों ने जो आवाज़ उठाई, और उसके बाद अब ये हादसा हुआ है, तो इनकी कैंडिडेसी और कमजोर हुई है। खुल के लोग बोल रहे थे, हमने भी कल कुछ लोगों से बात की वहां पे जो इंडियन अमेरिकन हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, कि वो अब चाहते हैं कि इन्हें पीछे हटना चाहिए, पर बाइडेन पीछे हटने को तैयार नहीं लगते। पर आपको लग रहा है कि अब बाइडेन के साथ में और कमजोर है डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये लग रहा है कि कैंडिडेट बदला जाएगा वहां पे? साफ जाहिर है कि बाइडेन की पोजीशन इस वक्त में बहुत वीक है, और तभी तो पार्टी से भी दबाव आ रहा है उनके ऊपर। और मेरा ख्याल है जब तक बाइडेन है तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। अगर तो कैंडिडेट बदलें तो शायद कैंडिडेट कंटेस्ट हो सकती है, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रम्प की तौर तरीकों से सहमत नहीं है, लेकिन उनको चूज करने के लिए बहुत ऑप्शंस नहीं है आज की तारीख में। तो सब्सटेंटिव इश्यूज पे भी बात होगी। आलोक जी ने बहुत दो चार सब मुद्दों को उठाया है। फॉरेन पॉलिसी के फील्ड में मैं अगर कहूं तो यूक्रेन वॉर में जो अमेरिका का सपोर्ट है, मैं थोड़े दिन पहले अमेरिका में था, तो वहां पे बहुत एक्सटेंसिव डिबेट हो रही है। कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई इतना पैसा दिया जा रहा है, अरबों की तादाद में दिया जा रहा है, ट्रिलियंस की तादाद में दिया गया है, तो उससे अमेरिका को क्या फायदा हो रहा है और कब तक चला के रखेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप का खुद व्यू और जो उन्होंने रनिंग मेट को सेलेक्ट किया है उनके बहुत स्ट्रांग व्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्लाइमेट चेंज में ट्रंप को मालूम है, आप सबको मालूम है कि ट्रंप इज नॉट दैट सिंपैथेटिक। बिल्कुल अपने जी, में उन्होंने तो ऑलरेडी जो है, हाँ, ये जो अमेरिकी चुनाव है, इसके जो भी परिणाम होंगे उसका असर बहुत बड़े स्तर पे, जैसा आप बता रहे हैं कि तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, ग्लोबल इश्यूज हैं, उन पे पड़ेगा, चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो। अब ये देखना है, अमेरिका में लगातार जो सियासी हालात बदल रहे हैं, क्या होता है आगे, ये देखना होगा। धन्यवाद आपका, हमारे पास वक्त इतना ही है अभी इस चर्चा के लिए। आप दोनों का धन्यवाद, वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आलोक बंसल। इस वक्त सच की पड़ताल में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। अब ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक खबर उस हमले की भी, डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ है, वो सवाल उठ रहे हैं अमेरिका में कि कितनी बड़ी चूक है ये सीक्रेट सर्विसेज की। तो एक ब्रेक के बाद ये दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली में हुए हमले के 2 दिन बाद अमेरिका के मिलवॉकी में वो रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट के पर्याप्त वोट हासिल कर पाए और आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार बने राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन ट्रंप पर हुआ हमला सवालों के घेरे में है। पूर्व राष्ट्रपति और संभावित उम्मीदवार जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की थी, उस पर तमाम सुरक्षा घेरे के बावजूद हमलावर गोली चलाने में कामयाब रहा। वो तो ट्रंप बाल बाल बच गए। अमेरिकी इतिहास में ऐसे हादसे पहले भी हुए। 43 साल पहले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को एक हमलावर ने गोली मारी थी जो उनके फेफड़ों में लगी थी, हालांकि उनकी जान बच गई थी। आज अमेरिकी सियासतदां और अवाम दोनों ही ये पूछ रहे हैं कि एक हत्यारा कैसे बंदूक के साथ छत पर पहुंचा और उसने मंच पर खड़े डोनाल्ड ट्रंप पर 4 गोलियां चलाईं। ये सब ऐसी जगह पर हुआ जिसे सिक्योरिटी एजेंसियों ने ट्रंप के लिए महफूज बनाया था। घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वहां मौजूद लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया या पर उन पर कार्रवाई ही नहीं की गई। घटना की जांच में FBI, सीक्रेट सर्विस और होमलैंड सिक्योरिटी भी शामिल है। सीक्रेट सर्विस के निदेशक क्रिमली शीटल को 22 जुलाई को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अपना बयान देना है। कई चश्मदीदों के बयान सामने आए हैं जिनमें वो कह रहे हैं कि गोलियां चलने से पहले छत पर हमलावर को रेंगते हुए देखा था। लोगों ने चेतावनी दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
पुलिस हालात का सही आकलन नहीं कर पाई। हमलावर को TMZ की फुटेज में निशाना साधते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि हमलावर को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया, लेकिन उससे पहले उसकी गोली से रैली में आया एक शख्स मारा गया, 2 घायल हुए और ट्रंप के कान में गोली लगी। वो बाल बाल बच गए, लेकिन सवाल बने हुए हैं। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।